આપણા નવદીપના આંગણે શ્રીમતી ચૌલાબેન જાગીરદાર આપણા મુખ્ય મહેમાન બન્યા છે. તેઓનું જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે આપણે સ્વાગત કરીશું. નમસ્કાર. અહીંયા ઉપસ્થિત મુખ્ય મહેમાન શ્રીમતી ચૌલાબેન જાગીરદાર, સંચાલક મંડળના સદસ્યશ્રીઓ, સમર્થ પરિવાર, વાલીશ્રીઓ અને વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સર્વેનું આ 76મા ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ. અવસર રૂડો છે આજ ને હૈયે હરખ ઘણો વર્તાય છે. અવસર રૂડો છે આજ અને હૈયે હરખ ઘણો વર્તાય છે. આપ તણી હાજરી નિરખી અમ હૈયામાં ઉર્મી ઉભરાય છે. તો અમારી આ ઉર્મીઓને પ્રગટ કરવા માટે ધોરણ 8ની બાળાઓને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્વાગત ગીત લઈને આવી રહ્યા છે, જેના શબ્દો છે મન કી વીણા સે કરતે હૈ સ્વાગત. તો ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીનીઓ એક સ્વાગત ગીત લઈને આવી રહી છે. वीणा से गुंज
આપે આપના કરતલ ધ્વનિથી બાળકોનો ઉત્સાહ વર્ધન કર્યો. અમારો ભાવ આપ સુધી પહોંચ્યો એટલે આ સમય પણ કેટલો સદ્ધર થઈ ગયો. આ સમય પણ કેટલો સદ્ધર થઈ ગયો. આપના આગમનથી અવસર થઈ ગયો. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे आसमां तुझे, हम अभी से क्या बताए क्या हमारी कहानी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. આજનો આ અવસર વિશેષ છે. આજ આપણે આપણા દેશનો 76મા ગણતંત્ર દિવસ સૌ સાથે મળીને ઉજવી રહ્યા છીએ. ભારતની સ્વતંત્રતા મળી એ માટે ઘણા ભારતના સ્વતંત્ર સેનાનીઓએ પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું હતું. 26 જાન્યુઆરી 1949માં ભારતનું સંવિધાન લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. અને હા, આજનો આ દિવસ આપણા માટે એટલે પણ વિશેષ છે કે આજે આપણે મુખ્ય મહેમાન તરીકે આપણી વચ્ચે શ્રીમતી ચોલાબેન જાગીદારની વિશેષ ઉપસ્થિતિ છે. તો જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય શ્રીમતી ચોલાબેન જાગીદાર વિશે. છે રસમ અહીંની જુદી ને છે રિવાજો એ નોખા. છે રસમ અહીંની જુદી ને છે રિવાજો એ નોખા. અમારે મન તો કેવળ શબ્દ જ કંકુને ચોખા. તો આવેલ મહેમાનશ્રીઓનું શબ્દોથી સ્વાગત કરવા માટે હું આપણા નવદીપ વિદ્યા મંદિરના આચાર્ય સાહેબ શ્રી પ્રવીણભાઈ ચૌધરીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મહેમાનશ્રીઓનું શાબ્દિક સ્વાગત કરે. સાહેબ શ્રી પ્રવીણભાઈ ચૌધરી. નમસ્કાર. 76મા ગણતંત્ર દિનની શાનદાર ઉજવણીના ભાગરૂપે અહીંયા આપણી વચ્ચે આપણા સંસ્કાર હોલની અંદર થોડીક એમની વાત કરું તો જે બેન આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે તો છેક અસમથી લઈ અને સિયાચીન સુધી પગપાળા યાત્રા કરી અને આખો હિમાલય પર્વત એ ગુંદ્યો છે ચાલતા. ઘણા બધા એમના સાહસો છે, એની વિશેષ વાત હમણાં અહીંયા આપણા સાહેબ મૂકે જ છે. બીજું ખાસ કરી અને અહીંયા અમારા વાલી ઉપસ્થિત છે તો થોડીક નજીકથી એમની ઓળખાણ કરાવવા જાઉં તો વર્ષો પહેલાં બનાસકાંઠાની અંદર એક લોક નિકેતન કરી અને સંસ્થાની સ્થાપના કરી. અત્યારે તો લગભગ 12 સંસ્થાઓ કાર્યરત છે અને હરિસિંહ ચાવડા નામ આપણે બધાએ સાંભળ્યું છે, આપણે બધા એમનાથી પરિચિત છીએ. એ હરિસિંહ ચાવડાના પુત્ર કિરણભાઈ, એ કિરણભાઈના ધર્મપત્ની છે ચૌલાબેન. સરસ મજાનું ટ્રાઇબલ વિસ્તારની અંદર, આદિવાસી વિસ્તારની અંદર આ 12 શાળાઓ કાર્યરત છે. એ પણ આદર્શ નિવાસી એટલે રેસિડેન્શિયલ, બાળકો ત્યાં રહે ત્યાં ભણે એ રીતની બધી જ વ્યવસ્થાઓ એ શાળાની અંદર છે. અને બેન પોતે અને કિરણભાઈ એના ટ્રસ્ટી પણ છે. એટલે આવા મહેમાન આપણી વચ્ચે મળ્યા છે ત્યારે જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમનું અભિવાદન કરીએ, એમનું સ્વાગત કરીએ. બેનને અહીંયા સુધી લઈ આવવામાં આપણા ટ્રસ્ટી સુરેશભાઈ બધા પરિચિત છો, અવારનવાર આપણી વચ્ચે આવે જ છે. અનિવાર્ય સંજોગોના કારણે અત્યારે આજથી જ એક શિબિર મહારાષ્ટ્રની બાજુ મોન્ટેરિયા ત્યાં શરૂ થઈ છે, જીવન વિદ્યાની શિબિર. એટલે ત્યાં છે એટલે એ આપણી વચ્ચે આવી શક્યા નથી. પણ એમને એવું કહ્યું હતું કે બેનને તમે એ જ દિવસે કહેજો કે હું નથી એવું. એટલે એ સુરેશભાઈ જે સાહેબ છે એ બેનના ખાસ નજીક અને પારિવારિક સંબંધો એમની જોડે છે. એટલે સુરેશભાઈના પરિચયથી આપણે ત્યાં આજે મહેમાન બન્યા છે બેન.
બીજું સાથે સાથે સમર્થ પરિવાર કે જે શાળાની અંદર છેલ્લે આપણે જોઈએ તો 6-7 વર્ષથી અહીંયા પોતાનું તન મન અને ધન લગાવ્યું છે, તો એ પણ થોડીક સમયની અનુકૂળતાના કારણે અનિવાર્ય સંજોગો હતા જેના કારણે અહીંયા ઉપસ્થિત નથી રહ્યા, તો એમને પણ આપણે યાદ કરવા રહ્યા. અહીંયા આપણા જે શિક્ષણ નિયામક છે પારસભાઈ સાહેબ, એમના પરિવાર, એમના પિતા છે, એમના મમ્મી શૈલેન્દ્રસિંહ છે આપણી વચ્ચે પૂનાથી, હમણાં જ સરસ મજાનું વંદે માતરમ ગીત ગવડાવ્યું આપણને નીચે. અમારા અહીંયા કારોબારી સભ્ય અયુબભાઈ, પૂર્વ કારોબારી સભ્ય જમાલભાઈ કે જેમને આ સંસ્થાની સ્થાપના કાનજીભાઈ, જમાલભાઈ અને ભીખાભાઈ ડૉક્ટરે 2001ની અંદર આ સંસ્થાનો પાયો નાખ્યો અને એ આદ્ય સ્થાપકો છે, એટલે એમને પણ હું યાદ કરું છું આ તબક્કે. મોટી સંખ્યામાં આખો હોલ ભરાઈ ગયો છે, એટલે સરસ મજાની વાત તો એ છે કે વાલીઓ પણ આટલા બધા ઉત્સુક છે કાર્યક્રમ માટે, બેનને સાંભળવા માટે, તો મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ પણ ઉપસ્થિત છે, તો બધા વાલીઓનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. સાથે સાથે છેલ્લા કેટલાય સમયથી આ કાર્યક્રમની અંદર અમારા જે નવદીપ પરિવારના સૌ શિક્ષક ભાઈઓ અને બહેનો લાગેલા છે, તો એમને અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોને બધાને હું આ પ્રસંગે આવકારું છું, બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ શ્રી. હવે અતિથિ સત્કાર એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, તો હું આપણા શાળાના ડાયરેક્ટર સાહેબ શ્રી પારસભાઈ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તેઓ બહેનશ્રીનું ઉપહાર આપી એમનું સ્વાગત કરે. અમે હૈયાના હરખથી બહેનશ્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મંચ પર આવે. અમે હૈયાના હરખથી ઉપહાર ધર્યા છે, એ ઉપહારમહી લાખ ઉમંગો ભર્યા છે, એને ખીલવવા અમે પણ કંઈ જતન કર્યા છે. બહેનશ્રીને ઉપહારમાં કેળા, પાલક, મેથી આપીએ છીએ, જે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અને શિક્ષકો દ્વારા આપણા હર્બલ ગાર્ડનમાં કુદરતી રીતે રાસાયણિક ખાતરોના ઉપયોગ વગર તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અને આ અમારા હર્બલ ગાર્ડનનો પહેલો પાક છે. આ અમારા હર્બલ ગાર્ડનનો પહેલો પાક છે, જે હરખ અમે આપની સાથે વહેંચી રહ્યા છીએ. તો જોરદાર તાળીઓથી બહેનશ્રીનું સ્વાગત કરીએ. હવે આજે આપણે આપણું સ્કૂલનું એક મેગેઝિન છે, એનું પણ આપણે ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણા મુખ્ય મહેમાન શ્રીમતી ચોલાબેનના વરદ હસ્તે આપણા આ મેગેઝિનનું ડિજિટલ ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે, તો આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. શ્રી નવદીપ વિદ્યા મંદિરનું ઉત્સવ ઉડાન નામથી આ મેગેઝિન દર 3 મહિને પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. આ મેગેઝિન શ્રી નવદીપ વિદ્યા મંદિરનું ઉત્સાહ ઉડાન નામથી આ મેગેઝિન દર 3 વર્ષે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે, જેમાં શાળાના કાર્ય, વિચાર અને વિઝન મુખ્ય રહેશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આજના આપણા મુખ્ય મહેમાન શ્રીમતી ચોલાબેન જાગીદાર વિશે આપ સૌ જાણવા માટે ઉત્સુક તો છો જ. ये खून नहीं है पानी का, ये खून नहीं है पानी का, ये लहू है हिंदुस्तानी का. એવા સાહસિક અને સેવાભાવી બેનશ્રીના
પરિચય માટે હું શ્રી નવદીપ વિદ્યા મંદિરના કેમ્પસ ડાયરેક્ટર શ્રી પારસભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મુખ્ય મહેમાનનો આપણને પરિચય કરાવે. કેમ છો છોકરાઓ, બધા મજામાં? વાહ, સરસ. તમને જોઈને તો આજે એકદમ હું ઉત્સવિત થઈ ગયો છું. બહુ સરસ તૈયાર થઈને આજે આવ્યા છે બધા છોકરાઓને, એકદમ ઉત્સાહમાં. આમ તો આ ઉત્સાહ છે એ કાલથી જ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો હતો, કેમ તૈયારીના ભાગરૂપે. તો આજે જે મુખ્ય અતિથિ તરીકે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એવું વ્યક્તિત્વ શ્રીમતી ચોલાબેન જાગીરદાર, એમનો પરિચય આપવાનો મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું બધા લોકો સાથે. આમ તો આપણે એને આજે માણવાના જ છીએ, સાંભળવાના જ છીએ, ત્યારે તમને એનો વિશેષ પરિચય થશે કે બેન છે એ કેવું વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. હું પણ પહેલી વાર જ રૂબરૂ મળી રહ્યો છું, પણ આ પહેલાં જે અહીંયા આવવાની વાત હતી એમાં એમની સાથે ટેલિફોનિક ટોક થઈ, એમાં જ છે અમુક એના જે પર્સનાલિટી કે વ્યક્તિત્વના ટ્રેટ્સ છે એ મને જોવા મળ્યા. જો બેન વિશે છે એ એમની કારકિર્દીની વાત કરીએ તો પ્રવીણભાઈ સાહેબે કીધું એમ કે બેન પર્વતારોહણ ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાત છે અને માઉન્ટ આબુ ખાતે પર્વતારોહણની એક સંસ્થા SVIM કરીને, સ્વામી વિવેકાનંદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ માઉન્ટેનરિંગ, એના ભૂતપૂર્વ પ્રિન્સિપલ રહી ચૂકેલા છે. હાલ લોકનિકેતન રતનપુરની સંસ્થાઓ છે એમાં ટ્રસ્ટી તરીકે પણ કામ કરે છે. બેનનું વ્યક્તિત્વ છે એ એટલું શાનદાર છે કે એમના મિત્ર છે બચેન્દ્રીપાલ, જે પ્રથમ મહિલા પર્વતારોહી છે જેમણે હિમાલય સર કર્યો હતો. एवरेस्ट सबसे पहले. तो उनके काफ़ी अच्छे मित्र हैं दीदी, और उनके साथ ही उनकी लीडरशिप टीम में दीदी ने 50+ एज की जो महिलाओं ने हिमालय सर करने का एक प्रोग्राम गढ़ा, उसमें लीडरशिप रोल में दीदी रह चुके हैं. और आज भी दीदी की जो उम्र है फिर भी वो पहाड़ चढ़ते हैं. तो आज अभी हम बात कर रहे थे आते समय कि हमारी स्कूल तो 4 माले के ऊपर है, तो ऊपर आना फिर से जाना. अभी हम गार्डन देखने गए थे तो दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए इतना मतलब डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हमने हिमालय सर किया, हिमालय पे एक्सपेडिशन किया है. तो जितना अच्छी तरीके से उनका काम है उतने ही सिंपल, एकदम डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है. તો ખાસ એમને બોલાવવા પાછળનો હેતુ આપણો એ જ હતો કે આપણા છોકરાઓ પર્વતારોહણ ક્ષેત્રમાં શું ભવિષ્ય છે એ તો જોવે જ, પણ સાથે સાથે એમાં જે સાહસ, અભય અને વિશ્વાસની વાત છે એ તો બધા છોકરાઓ પર્વતારોહણ બનવાના નથી, પણ એમાં જે સાહસ, વિશ્વાસ, અભયની વાત છે એ તો બધા બાળકોને જોઈએ છે કે નહીં? હે? તો એ તમારી અંદર કઈ રીતના આવે એની વાતચીત કરવા માટે ચોલાબેન આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું અમુક બીજી મહત્વની જો તમારી સાથે વાત કરું તો મેજર એમણે જે સાહસો કર્યા છે એમાં બેને છે એ સાયકલ એક્સપિડિશન કચ્છથી લઈને કેરેલા સુધી, ક્યાંથી? કચ્છથી લઈને કેરેલા સુધી સાયકલિંગ કરીને 2014માં, એટલે 2024 પૂરું થયું અત્યારે, 11 વર્ષ પહેલા, બરાબર. આપણને છે એ અત્યારે બે ઘડી વિચાર આવે કે આપણે કરી શકશું કે નહીં. આ સિવાય સ્નોમેન ટ્રેક ભૂતાનમાં, અન્નપૂર્ણા સર્કિટ જે એમણે પર્વતો સર કર્યા છે, એક્સપિડિશન કર્યું છે, એમાં ટ્રાન્સ હિમાલયા એક્સપિડિશન, ભારત એકલા કુંટલા, કામેત, માઉન્ટ મોમોત્સોંગ કાંગરી, આમાં અમુક માઉન્ટના નામ બોલતા તો મારી એ જીભ, પણ માઉન્ટ આબી ગામીન, માઉન્ટ કેદાર ડોમ, માઉન્ટ કૈલાશ, માઉન્ટ મણિરંગ એક્સપિડિશન, માઉન્ટ મેન્થોશા, માઉન્ટ દેવીસ્તાન, માઉન્ટ ત્રિશુલ, આ જેટલા પણ હું માઉન્ટ બોલ્યો એનું એવરેજ હાઇટ છે એ 5000 મીટરથી ઉપરની હતી. એ બધી જ જગ્યાએ એમને એક્સપિડિશન કરેલું છે. અને ખાસ તો પ્રવીણભાઈ કીધું એમ હિમાલયા એવરેસ્ટ એક્સપિડિશન છે
એમાં પણ બેને છે એ બહુ ખાસો એવો સમય ગાળ્યો છે. તો એની બધા લોકો તમારાથી વાકેફ થાય, થોડું આ જે માઉન્ટેરિંગ છે એ શું છે એ ખ્યાલ આવે. એટલે કાલે સેટરડે અમે બધા બાળકોએ એક સરસ મૂવી પૂર્ણા એ પણ નિહાળ્યું. તો એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે આપણે પણ આ દિશામાં આગળ વધી શકીએ છીએ, અને આ દિશામાં આગળ વધવું હોય તો કેવી કઠિનાઈઓ છે. છોકરાઓ એમાંય કહેતા હતા કે અમારે એમની સાથે કંઈક વાત કરવી હોય તો મેં કીધું બેનની સાથે તમે વાત કરી શકો છો, ક્વેશ્ચન આન્સર કરી શકો છો. તો આટલા પરિચય સાથે પહેલા હું તમને આમંત્રિત કરીશ કે તમે તમારી લાઈફમાં જે રીતના આગળ વધ્યા છો એ પરિચય અમારા બાળકો સાથે શેર કરી અને બાળકો અને વાલીઓને લાભાન્વિત કરો. એટલે લેટર ઓન છે કોઈ ક્વેશ્ચન હશે એમના તો એ પણ આપણે લેશું. તો તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બેન. અમે ખૂબ ખૂબ સૌભાગ્યવાન છીએ કે તમે અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છો. ધન્યવાદ સાહેબ શ્રી. હવે આપણે આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારતા નાના નાના ભૂલકાઓએ તૈયાર કરેલ સાંસ્કૃતિક કલાકૃતિઓ પણ નિહાળવાના છીએ. પણ એ પહેલા આપણે જેમને સાંભળવા માટે ઉત્સુક છીએ એવા આજના મુખ્ય મહેમાન શ્રીમતી ચોલાબેન જાગીરદારને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને વક્તવ્ય આપે. Motivation is what gets you started. Habit is what gets you going. सुप्रभात। मुझे बेहद खुशी है आपके बीच में उपस्थित रहने के लिए। अत्रे उपस्थित सारे महानुभाव, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, वडीलगण और मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कहीं पर जाती हूँ ना तो कभी असहज महसूस होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा यहाँ बहुत ही सहज महसूस हुआ और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। 76वां गणतंत्र दिवस के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि आपकी स्कूल में या आपके अभ्यास में गणतंत्र दिवस के क्यों मनाया जाता है और गणतंत्र क्यों बोलते हैं वो शायद आपको मालूम ही होना चाहिए या होगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। गणतंत्र मतलब जनता का जनता द्वारा शासन। हम ही अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि जीवन का मूल्य क्या है। जीवन मूल्य आधारित है तभी वो आदर्श है, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जीवन का मूल्य क्या है? सबसे पहले हमें सुरक्षित करना, आदर्श, इष्ट और शुभ होना वो जीवन मूल्य है। और मुझे लगता है कि नवदीप विद्या संकुल जो आपका है वो जीवन मूल्य पे आधारित है और मुझे बेहद खुशी है यहाँ उपस्थित रहने के लिए। और जो मैं मानती हूँ और चाहती हूँ वो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो जीवन मूल्य के साथ साथ में मानव मूल्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव मूल्य क्या है सभी को मालूम ही होगा, होगा कि नहीं है? તમને બધાને ગુજરાતી ખબર પડે છે કે હિન્દી? બધું વેરી ગુડ. મને પણ ગુજરાતી આવડે છે, પણ મારું ગુજરાતી ને હિન્દી બધું જ ખરાબ છે, ठीक है। लेकिन मैं माउंट आबू राजस्थान में रही तो थोड़ा सहज महसूस करती हूँ हिंदी बोलने में, तो इसलिए मैं हिंदी बोलूँगी तो चलेगा? आपकी परमिशन चाहिए, पहले लेनी चाहिए थी, तो माफ़ी चाहती हूँ। अब हम मानव मूल्य पे बात करेंगे। मानव मूल्य क्या है? सत्यनिष्ठा, हमारा स्वाभिमान, निडरता, प्रेम और परस्पर एक दूसरे को मदद करना, वो हमारे मानव मूल्य है। बहुत सारे मानव मूल्य है। तो मुझे लगता है कि ये सब हमें कहाँ से मिलता है?
जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए मानव मूल्य वो एक अहम अंश है और उसकी पाठशाला की शुरुआत होती है परिवार से। तो परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद वो परिवार जो है वो एक समाज का अंग है। और तीसरी बात जो मानव मूल्य की बात है वो आपको मिलती है आपकी पाठशाला से। तो आपकी पाठशाला ये नवदीप विद्या मंदिर है। तो परिवार, समाज और आपका विद्यालय, वो तीनों मिलके आपका सामाजिक तौर से और व्यक्तित्व रूप से आपका घड़तर करते हैं। ये बात शायद आप लोग सब लोग मानते होंगे। और मुझे लगता है कि सबसे अहम भूमिका शिक्षक की है, परिवार की है। कई लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी लड़की जब शादी करके जाती है तो बोलते हैं तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं आपको, है ना। तो माता की भूमिका का भी बहुत महत्व रहता है। और कई परिवारों में ऐसा होता है कि बच्ची ये नहीं करेगी, बच्ची वो नहीं करेगी, कहीं लिमिटेशंस आ जाता है। लेकिन हम नहीं देखते कि उसमें प्रतिभा क्या है। वो प्रतिभा देखना भी बहुत ही जरूरी है। और जब भी आप उसकी प्रतिभा देखोगे तो सामाजिक तौर पे वो आगे बढ़ता जाएगा। और मुझे लगता है कि विद्या मंदिर उसको बेहतर, बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है और उसके लिए प्रयास उनका जारी है। और स्कूल के बच्चे की जो डिसिप्लिन देखी और वेलकम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे लगता है कुछ बच्चे को क्वेश्चन है कि बाल छोटे क्यों रखते हैं, है ना। तो मैं आप उसको बताऊंगी इसके लिए कि मैं बाल छोटा क्यों रखती हूँ। क्योंकि मैं जब 24 साल की थी, 25 साल की, तो मेरी जॉब लग गई थी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में। एज ए इंस्ट्रक्टर मैंने काम किया। जैसे आपके शिक्षक है ऐसे ही मैं शिक्षक थी। लेकिन मैं लोगों को पहाड़ चढ़ाती थी। तो पहाड़ चढ़ाने के लिए जो ड्रेस है वो कंफर्टेबल है, पैंट और शर्ट। घाघरा चोली तो नहीं पहन सकते, न फ्रॉक पहन सकते, नहीं पहन सकते ना। तो पैंट शर्ट पहननी पड़ती थी। दूसरी बात, मैं माउंट आबू में माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में थी। माउंट आबू में फ्रीक्वेंटली लाइट चली जाती है, वारंवार लाइटों जती रहे माउंट आबू में। तो आईना देखने का मिलता नहीं है ना। तो अंधेरे में ड्रेसअप हो जाओ, रात में कपड़े तैयार करके रख दो, अंधेरे में कभी रोज अगर लाइट है कि नहीं है, कपड़े तैयार रखना है, पैंट शर्ट पहनो, शूज पहनो, बाल में हाथ घुमाओ और निकल जाओ। टाइम पे तो पहुंचना पड़ता है ना। एक पंक्चुअलिटी भी बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन मेंटेन कराई नहीं जा सकती। डिसिप्लिन स्वयं मेंटेन करती है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाई नहीं जाती है, हमें स्वयं को सीखना होता है। अभी मेरे बाल छोटे होने की बात आपको समझ में आ गई। जो छोटे छोटे बच्चे ने क्वेश्चन किया था, शायद पारस भाई की बेटी ही थी। बेटा देखो समझ में आया मैंने क्या बोला, है ना। और आपको मजे की बात ये बताओ कि अब तो मेरी उम्र है 67 ईयर्स। अभी मैं बाल बढ़ाना चाहूँ तभी भी नहीं बढ़ता है। तो मुझे आप लोगों के बाल देख के बहुत ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि जो स्टेज पे लड़कियां डांस कर रही थी सबके बाल लंबे हैं, लेकिन मेरे बाल बढ़ते ही नहीं है। तो कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। तब अभी आपको लगा होगा कि ये लड़का है इसलिए मुझे लंबा टीका कर दिया है। तो लंबे टीका टीका चाहे लंबा हो या छोटा हो, वो शुभ माना जाता है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जब टीका लंबा कर रहे थे तभी मुझे समझ में आ गया था कि आपने सोचा कि लड़का ही है। ले अच्छी बात है। मैं जो यहाँ पर पेरेंट्स सभी बैठे हैं, जो वालीगण है, उनको भी विनंती करती हूँ कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाए। अब माउंटेनियरिंग फील्ड की बात करूँ तो मैं बहुत छोटी थी, 16 साल की, तब से मैंने अपना माउंटेनियरिंग शुरू किया था। और मुझे लगा था कि माउंटेन्स में ही मुझे रहना है।
जब पहली बार मैंने माउंट आबू में कोर्स किया तब मैंने सोचा था कि मैं यहाँ ही नौकरी करूँगी, यहीं सर्विस करूँगी। वो बहुत मतलब दिलचस्प कहानी है मेरे लिए, बहुत ही टचिंग था। मैंने 10 दिन का माउंट आबू में कोर्स किया था। उस कोर्स में एक यूसुफ सर था हमारा, तो यूसुफ सर ने मुझे बोला कि लकड़ी लेके आओ। हमको लकड़ी लेके, हमको खुद को खाना बनाना था, हम लकड़ी लेने गए। तो लकड़ी लेने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ गई थी, तो उन्होंने जैसे लेपर्ड आया हुआ उसकी आवाज़ की और मैं पेड़ पर से धड़ाम से नीचे गिरी। जंप मार के भागने की कोशिश कर रही थी, मैं भाग भी गई। लेकिन तब वो जो क्षण था मेरे लिए, तो मुझे लगा कि मुझे ये डर क्यों लगा, ये डर आना ही नहीं चाहिए मेरे में। और तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डर भगाना है तो मुझे एडवेंचर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने सब साहस जुटाया, उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन मैंने पाया और मुझे माउंट आबू में वो जॉब भी मिल गई। एक कहने का, ये जो कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य ये है, अगर आप जो भी चाहो एक बार संकल्प कर लोगे तो आप जरूर बन पाओगे। मैं अपने अनुभव से ये कह रही हूँ। ये एक ही अनुभव आपको बताया, बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं कि जो मैंने चाहा है वो मुझे मिला है, लेकिन उसके लिए दिल से चाहत होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय, दृढ़ मनोबल होना चाहिए, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे देखो तो मेरे पूरे करियर की बात करने जाऊं तो बहुत समय कम हो जाएगा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा हिमालय इतना विशाल है, उसमें तो हजारों जिंदगी कम पड़ जाएगी। और मुझे अभी भी ऐसा जीने का मन कर रहा है कि मैं पहाड़ चढ़ूं, मैं नेचर के साथ में रहूं। नेचर के साथ में जो सुकून मिलता है ना, जो आत्मविश्वास मिलता है, जो निडरता मिलती है, ठीक है, नम्रता मिलती है, वो सब नेचर के साथ में रहते मिलती है। उसको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। शायद अब बच्चे तो उससे परिचित नहीं होंगे, उन्हें ये पता भी नहीं होगा शायद, लेकिन काफ़ी बड़े यहाँ पर है, वो सभी को पता होगा कि कारगिल वॉर के दौरान सभी न्यूज़ देख रहे थे, तब काफ़ी जवान घायल, हमारे बहुत लोग जवान हमारे घायल हुए थे और बहुत लोगों की डेथ भी हुई थी। और तब जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था, उसका जो लाइव टेलीकास्ट किया जाता था या रेडियो न्यूज़ में आता था, वो देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। हम माउंटेनियर थे, तो हमने सोचा कि हम लोग, हमारी फर्ज बनती है कि हम लोग माउंटेन्स में जवानों के पास में जहाँ लड़ाई चल रही है वहाँ हम जाए और उनको हेल्प करें। हेल्प हम किस वे में कर सकते हैं? जैसे शाब्दिक हम सम्मान करते हैं, शाब्दिक हम हौसला बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं ना किसी का, तो हमने सोचा हम इनके पास में जाते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, जैसे आपकी स्कूल है तो स्कूल में प्रिंसिपल को बता दिया कि जवान के नाम से लेटर लिख के दो। जो अगर पिता लिखेगा, कोई आदमी लिखेगा तो अपने बेटे के हिसाब से लिखेगा, कोई लड़की लिखेगी तो जवान को अपने भाई के तरीके से लिखेगी, है ना। तो हमने बताया नाना नानी दादा दादी जैसे जिसकी जैसे उम्र है उस हिसाब से जवान को लेटर लिखिए कि उनका हौसला बढ़े। हम लोग ने डिफेंस की परमिशन ली, बचेंद्री पाल हमारी लीडर थी, हम मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन लेके गए थे, हम सारे मोटरसाइकिल चला के गए थे। हमने दिल्ली में इंडिया गेट, शायद आपने देखा हो, सभी बच्चों ने भी देखा होगा, आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन जब अभी इंडिया गेट दिखाई दे आपको तो ध्यान से देखना। वहाँ से हमने अपनी मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की थी, और वो पता है सिर्फ लेडीज़ की थी। लेकिन बाद में हमको बताया गया कि भी आपका पंचर हुआ, ये हुआ, टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए आपको साथ में लड़के रखो। तो बाद में कुछ शामिल भी हमने किए। और मुझे बेहद खुशी की बात ये बताती हूँ कि जो मेरी मोटरसाइकिल थी, ये आपके जो ट्रस्टी है सुरेश भाई पटेल, उनकी मोटरसाइकिल थी वो। क्योंकि मैं ढूंढ रही, मैंने चलाई थी तो मेरे पास में थी, बुलेट थी, मैं बुलेट चलाती थी। तो बुलेट चलाने के बाद में जब बेटी छोटी हुई तो बहुत हवा लगती थी, तो
4 व्हीलर आ गया तो बुलेट साइड में चली गई। तो मेरे पास कुछ व्हीकल नहीं था तो हमने सुरेश भाई का हीरो होंडा मैंने बोरो किया था। अब आप लोग पहाड़ में चलते गए, आप लोगों को मजा आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है कि गुजराती में बोलो? तब समझे पड़े से ना, समझ कैसे नहीं आएगी? हिंदी सीरियल मूवी तो बहुत देखते हो, है ना? वो तो समझ में आना ही चाहिए। और बिल्कुल हिंदू हमारी मातृभाषा है कि नहीं? है ना? अब समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करो, ठीक है? हम लोग मोटरसाइकिल लेके दिल्ली से निकले। मेरे पीछे बचेंद्री पाल थी, उसको मोटरसाइकिल नहीं आती थी। बोले चौला तो बहुत अच्छा चलाती है। दिल्ली में हम लोग डिफेंस में इधर उधर परमिशन के लिए, कागजात फॉर्मेलिटीज़ के लिए बहुत घूमे। वो मेरे पीछे बैठ जाती थी कि तू बहुत सारी लड़कियां थी, हम 10-11 लड़कियां थी, हमारी 12 मोटरसाइकिल थी। तो बोले तुम अच्छा चलाती हो कॉन्फिडेंटली, तो मैं तेरे पीछे बैठूंगी। मैंने बोला ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पीछे बैठी थी, क्यों बैठी थी वो सब बता रही हूँ। जरूरी है बताना कि आगे बहुत कुछ हुआ था, इसीलिए मैंने बताया कि वो मेरे पीछे बैठी थी। अब जैसे जैसे चलते गए हमने पास क्रॉस किया पहाड़ में। आपने कभी पहाड़ों देखा ना, पूर्णा का देखा ना अपने मूवी, उसके भी ऐसे ही छोटे छोटे पहाड़ों से बड़े बड़े पहाड़ में हम लोग जा रहे थे। बहुत छोटे छोटे रास्ते थे। और जब 99 में वॉर था तब आर्मी की कॉन्वॉय चलती थी। आर्मी का सामान लेके, कॉन्वॉय मतलब ट्रक में पूरा सामान भर के, राशन वगैरह भर के वो जाती थी। लेह में आ गए, कारगिल, द्रास वगैरह, श्रीनगर से भी आती थी गाड़ियाँ, और इस तरफ मनाली की तरफ से भी गाड़ियाँ जाती थी। तो हमने मनाली वाला हिमाचल का रास्ता लिया और हिमाचल से हम जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख होके फिर इंडिया गेट वापस आए थे। तो हम लोगों ने जब एक पास क्रॉस किया, उस पास में हम लोग जा रहे थे। बहुत सारी ट्रक थी, स्लो चल रही थी ट्रकें, बहुत मिट्टी उड़ रही थी क्योंकि रास्ता कच्चा था। और पहाड़ के रास्ते कैसे होते हैं देखिए ना, ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, बहुत टर्निंग होता है ना? तो हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे थे, ट्रक भी धीरे धीरे जा रही थी क्योंकि ट्रक हैवी थी, सामान भरा हुआ था। ट्रक वालों ने हमको साइड दी, मेरे आगे 2 ट्रक वाले गए तो मैं भी अपना ओवरटेक कर रही थी। और सडनली ट्रक वाला थोड़ा राइट साइड में आया। जो पीछे था ना, साइड में था, वो पूरा खाई था पूरा, वहाँ कोई रास्ता नहीं, ना कोई पहाड़, कुछ भी नहीं, सीधा गए तो सीधा नीचे। तो ट्रक वाला मेरी थोड़ी साइड में आया तो मैंने भी अपना बाइक थोड़ा साइड में किया। लेकिन मैंने पहले बताया ऐसे कच्चा रास्ता, और माउंटेन्स में तो आपको पता है टार रोड नहीं होता, अभी धीरे धीरे बन रहे हैं लेकिन वो ख़राब भी हो रहे हैं। और बीच बीच में काफ़ी नालियाँ बहती है, पानी भी बहता है, उसमें से हमको मोटरसाइकिल निकालना पड़ता था। तो जैसे मैं थोड़ा आगे गई, ट्रक थोड़ा साइड में आई और मैं अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत पत्थर था। बचेंद्री मैम डर गई और उसने जो ट्रक का स्ट्रैप होता है ना, वर्टिकल स्ट्रैप, वो उसने पकड़ लिया और वो बाइक से पीछे से निकल गई क्योंकि उसने पकड़ा था और मैं तो चला रही थी। और जैसे उसने स्ट्रैप पकड़ा ट्रक का और मैं गिर गई, वो तो निकल गई बाहर और मैं गिर गई। 2 ट्रक के टायर मैं देख रही हूँ, बीच में मैं गिरी हुई हूँ, मेरी तरफ टायर आ रहे हैं धीरे धीरे, मैं देख रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर अंधेरा छा गया, क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जब मुझे ट्रक से मतलब वहाँ से बाहर निकाला, मुझे जब होश आया तो मुझे पता चला कि मुझे बिठाया गया था एक साइड में छोटे से पत्थर के सहारे। बहुत खून बह रहा था मेरे लेफ्ट नी में, और जो ट्रक ड्राइवर थे वो ब्रेक ऑयल डाल रहे थे। मेडिसिन तो थी नहीं तब, ब्रेक ऑयल डाल रहे थे, कोई नहीं मुझे पेन किलर दिया। और जब मैंने अपनी मोटरसाइकिल देखी तो मेरी मोटरसाइकिल का जो टैंक था पेट्रोल का पूरा रप्चर हो चुका था, बिल्कुल पेट्रोल गिर गया था, मोटरसाइकिल चलाने के लायक नहीं थी। फिर उसी मोटरसाइकिल, जिस ट्रक से हमारा एक्सीडेंट हुआ उसी ट्रक में मोटरसाइकिल डाली, हम भी उसी ट्रक में बैठे, हम लोग लेह पहुँचे। लेह से पहले एक
आर्मी की पोस्ट पड़ती है वहाँ पर गए, छोटा सा उनका मेडिकल का था, मुझे वहाँ और पेन किलर दी गई, थोड़ा सा खून बून साफ किया। मेरा पैर नहीं अपना इतना होता, मेरा इतना हो गया था, ऊपर से नीचे तक पूरे पैर में स्वेलिंग थी। ट्रक में बैठने चढ़ने में भी मुश्किल हो रहा था, तभी भी ट्रक में चढ़ गई। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, इसमें से भी कुछ सीखने का है। बहुत कुछ किया है जिसमें माउंटेनियरिंग में भी बहुत कुछ सीखने का है, लेकिन ये सीखने वाली बात है, इसमें से आपको कुछ तो मिलेगा जानने के लिए। तो ले हम लोग वहाँ से पहुँचे, ले हॉस्पिटल में गए, आर्मी की हॉस्पिटल थी, वहाँ पर बहुत सारे जवान थे, तब वॉर चल रहा था ना, युद्ध चल रहा था कंटिन्यूस। वहाँ पर जवान आ रहे थे इंजर्ड, किसी का कान कटा हुआ, किसी का नाक कटा हुआ, किसी का सिर का थोड़ा हिस्सा चला गया, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। वो देख के मैं बहुत ही मुझे मायूस हो गई और मुझे लगा कि मुझे मेरे पैर में तो स्वेलिंग ही है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। और वहाँ पर मेरा पैर का एक्सरे लिया गया, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे पैर में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे चोट आई है खाली। और फिर हम निकल पड़े हॉस्पिटल में, सभी जवान के पास में, जो मैंने पहले बताया कि सबके लेटर लेके गए थे, और हम बहुत सारी दिल्ली से मिठाई लेके गए थे। तो हर एक जवान को मिठाई देना और वो लेटर देना, और वो जो भावुक क्षण थी वो आज भी और कभी भी जिंदगी में भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि एक परिवार क्या होता है तब उन्हें महसूस होता है। उनके पास तो परिवार था नहीं, ऊपर से वो लोग इंजर्ड थे, काफ़ी लोग बेहोश थे, किसी की टांग चली गई थी, किसी का हाथ चला गया था। हम 2-4 मिनट उनके पास बैठते थे, उनसे बातें करते थे, उनको मिठाई बांटते थे। और मैं रोज दिन में 3 बार इतना इतना दवाई खाती थी और हॉस्पिटल में चलती थी। हम 3 दिन तक लेह में रहे। मेरा एक दोस्त था, उसने दे दिया मेरा मोटरसाइकिल रिपेयर कराने के लिए, तो टंकी तो ठीक हो गई, पेट्रोल भी भर गया, टायर भी नया लगा दिया, बाइक मेरी शुरू हो गई। अब जब मैंने देखा था हॉस्पिटल में कि इतने सारे लोगों को इतनी तकलीफें हैं, फिर भी उनके मुंह से उफ नहीं निकलता, आंख में आंसू जरूर थे, क्योंकि उनको परिवार याद आ रहा था। सबको ऐसी मुश्किल घड़ी में परिवार याद आता है, किसी का बच्चा, किसी को बाप याद आता है, किसी को माँ, किसी को अपनी वाइफ, किसी को, सब हमारे से बातें करते थे, क्या क्या हुआ उनके साथ में वो सब हमें बताते थे। उसके बाद में पेट्रोल की टंकी ठीक हो गई, मेरी बाइक ठीक हो गई। चौथे दिन हमने बाइक चलाना, हमारी जर्नी हमने शुरू की। तो मैंने अपना बाइक चलाना शुरू किया, 1-2 किलोमीटर गई, मुझे लगा कि तो मैं तो आराम से चला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गियर उठाना था, गिर रहा था आराम से, वो इसीलिए उठ रहा था क्योंकि मैं पेन किलर बहुत खा रही थी, तो मुझे पेन नहीं हो रहा था। और मेरा हौसला बुलंद था जवानों को देख के, और आर्मी का जहाँ पर मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या हो रहा था। कंटिन्यूस आपको फायरिंग की आवाज़ आएगी, धाम धड़ाम धड़ाम, जोर जोर से आवाज़ आएगी। उस माहौल में हम लोग रह रहे थे, तो आप सोचो हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं था, मेरे पैर में तो स्वेलिंग था खाली। पेन किलर लिया मैंने, मोटरसाइकिल चलाना शुरू किया। आगे एक ऐसी जगह आई, सॉरी, कि जहाँ पर पूरा पहाड़ था, ऐसे पहाड़ था, यहाँ छोटा सा रास्ता जा रहा था, वो 7-8 किलोमीटर ऐसा रास्ता था कि सामने से पाकिस्तान से जो फायरिंग होता था वो उधर पत्थर पे, सामने चट्टान पे फायरिंग होता था, और वहाँ से हमको, हमारे पर फायरिंग न हो या कोई और भी जवान हो, आर्मी की कॉन्वॉय जा रही हो, तो वो लोग ने वहाँ पर एक बनाया था नियम कि कुछ लोगों को, 10-12 लोगों को जाने देंगे और बताना था, हम बताएंगे, बता रहे थे हमको कि इसी स्पीड से जाना और एकदम फास्ट निकल जाना है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो क्षण अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतने शोर जो फायरिंग हो रहा था, उसमें हमने स्पीड में बाइक चला के हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और जब आप किसी इंसान के साथ में 2-4 दिन भी रहते हो ना, तो उससे मोहब्बत हो जाती है ना। हम उसकी केयर करने लगते थे, लगते हैं।
तो 2-4 दिन हम मतलब काफ़ी दिन हमारा हो गया था। हम देख रहे थे कि एक बाइक आई, दूसरी बाइक आई, तीसरी, हमारा वो बंदा तो आया नहीं। हम बहुत ही वरीड हो जाते थे, बहुत दुख होता था, हमारी आंख में पानी आ जाते थे कि वो बाइक अभी तक क्यों नहीं आई। एक बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार ऐसा हुआ। लेकिन वो जो समय था 6-7 किलोमीटर का, वो जब पास कर दिया और सब लोग हम आ गए तो हमें बहुत ही तसल्ली मिली। उसके बाद हम द्रास गए। द्रास में आपको तोलोनिंग नाम सुना होगा। हमको वहाँ पर अंदर आर्मी की परमिशन थी, इसीलिए आर्मी की गाड़ियों में हमको इंटीरियर में ले गए और हमने बॉफोर्स का लीवर भी दबाया है। हमको जवान के साथ में हमको पहले ले जाके सीधा बंकर में डाल दिया, है ना, क्योंकि हमारे लिए भी रिस्की था और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको तो बेचारे को पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें ऊपर से हमारी जिम्मेदारी उनके पर आ गई। हम सभी को पहले डाल दिया उन्होंने अंदर और बोले आप यहाँ पर सुरक्षित हो, वहाँ पर आप अंदर रहो बंकर में। तो बंकर में हम रहते थे, बारी बारी एक को लाते थे, जब भी बॉफोर्स चलाना होगा तो एक को बिठाएंगे और वहाँ तोपबाजी हो रही थी। मतलब बहुत ही भयानक था जो दिख रहा था, मैं उसको शब्द, मेरे पास में कोई वर्ड्स नहीं है। एक कर्नल था, उसने हमको बताया कि एक कल ही बोले गांव में वहाँ पर बम गिरा और काफ़ी गांव वाले सारे ख़त्म हो गया गांव। तो हमारे साथ में एक लड़की थी, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि 2-4 हम भी ठोक देते हैं, उनका गांव भी बर्बाद कर दो। तो कर्नल ने क्या बताया पता है? उनमें और हम में क्या फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये है, तब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था भारतीय होने का कि हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो दूसरे के लिए सोचते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग, वहाँ से हम आगे निकले, द्रास में ही वापस आए। फिर जब हम देख रहे थे तो एक ओपन कमरा था छोटा सा, उस कमरे में स्टिचेस लिए जा रहे थे। 2-3 वो रखी हुई थी स्ट्रेचर, 2-3 बाहर थे, सबके स्टिचेस हमारे सामने ले रहे थे। आप देखो, अब हॉस्पिटल में स्टिच लेते हो, वो भी हमारे लिए देखना कितना मुश्किल होता है। वहाँ पर जगह ही नहीं थी और बारी बारी जवान आते हैं, उनको स्टिचेस ले रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका हालत नहीं देख सकते थे। हम लोग बहुत मायूस हो जाते थे। लेकिन हम जिस हौसले के साथ में, जिस काम ले उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग निकले थे, तो हम लोग वो काम हमारा पूर्ण करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हम लोग वो अच्छे से पूरा करें। हम लोग भी उनकी में जुड़ जाते थे, क्योंकि इंसान कम पड़ता है ना, सबको परमिशन नहीं मिलती है वहाँ पर। तो हम जब जितने लोग गए थे, हमको बोला कैंची दो, फलाना रू दो, ये पट्टी दो, ये दो, हम लोग देते थे। आज मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि हम लोग जो चैन की नींद सोते हैं अपने अपने घरों में, जो हमारे सर्वदी संभाल रहे जवान, उसकी बदौलत हम चैन की नींद आराम से सो सकते हैं। बाकी बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम लोग आगे निकले। दूसरे दिन हम जहाँ द्रास में रुके थे, वो पीडब्ल्यूडी का बहुत पुराना मकान था। हम रात भर नहीं सोए। रात में कमरे से बाहर निकलो ना, रेड गोले दिखाई देते। रात में तो दिखाई देता, दिन में इतना पता नहीं चलता है, लेकिन रात में दिखाई देता। पूरी रात नहीं सो पाए, इतना जोर से आवाज़ आता था बम का। तब इतना द्रास कारगिल इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अभी मैं 4-5 साल पहले गई तो इतना डेवलप हो गया है, बहुत गांव हो गए हैं, बहुत गंदगी हो गई है। तो मेरे लिए बहुत ही दुख की बात थी। और कहाँ पहले मैंने देखा था इतने साल पहले और अभी। तो फिर मेरे जो पीडब्ल्यूडी के मकान में रुके थे, वो मकान हम दूसरे दिन जब दूसरी जगह पर गए तो हमें वहाँ से न्यूज़ मिला कि जो मकान में आप रहे थे वो मकान तहस नहस हो गया। तो हम अगली रात उसी मकान में रुके थे। दूसरे दिन वो मकान ही नहीं था, उसके पर बम गिरा और वो ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से हम लोग आगे निकले, श्रीनगर में गए। ये सारे पासिस क्रॉस करने के बाद श्रीनगर जब पहुँचे, श्रीनगर में एक्चुअल में माउंट आबू में, शायद आप लोग कोई गए होंगे तो पता होगा आपको, वहाँ पर माउंट आबू में एक कश्मीर एम्पोरियम है। वहाँ पर एक शौकत अली करके था जो
मुझे उसने बहन बनाया था। उसी टाइम शौकत अली वहाँ श्रीनगर में मौजूद था। उन्होंने बोला कि बहन श्रीनगर में आप कहीं नहीं जाओगी, आप मेरे पास रहोगी। मैंने बोला 17 लोग हैं, आप कैसे रखोगे? बोले आप उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम आ जाओ मेरे पास में। और मैंने बोला कि भाई अभी रिस्क है, आप के यहाँ हम लोग आएंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई में इतनी ताकत है कि मैं सब कुछ झेल सकता हूँ। बोले तुम लोग हमारे यहाँ आओ। फिर 17 लोग, उनका लाल चौक में घर था, तो इसीलिए उन्होंने बोला मैं आपको एयरपोर्ट के पास में मेरे बहन का घर है, वहाँ बहन के घर में रखूँगा। तो हम उसके बहन के घर में रहे। लेकिन 2 दिन के बाद उनको इतनी धमकियाँ मिलने लगी, तो हमको बताया गया कि भाई आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे में तो हिम्मत है लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों के यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम तीसरे दिन सुबह वहाँ से निकल गए और वहाँ से फिर हम इंडिया गेट पहुँचे। हमारी जर्नी वहाँ पर पूरी हो गई। लेकिन जब मैं दिल्ली में आई तो दिल्ली में डॉक्टर को पैर दिखाया, सूजन बहुत थी और हिमोटिमा हो गया था। हिमोटिमा का मतलब है पानी भर जाना। तो मेरे नी में बहुत पानी भर गया था। वो गुब्बारे में पानी भरता है ना, फिर दबाते तो इधर से इधर जाता है ना, तो मेरा नी ऐसा हो रहा था। डॉक्टर ने बोला यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, आप जहाँ रहते हो वहाँ चले जाओ। तो फिर मैं तो माउंट आबू में रहती थी, माउंट आबू छोटी जगह थी। तो घर वालों ने सही समझा कि अहमदाबाद ले चलते। अहमदाबाद ले गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन से सारा पानी निकाल दिया। फिर लोहे का बड़ा पट्टा ऊपर से थाई से लेके नीचे तक बांध दिया। बोले 1 महीने तक बिस्तर से उठना नहीं है, आराम करो, जब टॉयलेट जाना तो इसी किसी के सहारे जाओ या घिसट के जाओ, लेकिन 1 महीना तक ये पट्टा आपका खुलेगा नहीं। और 1 महीने के बाद जब मुझे उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास में गई। उसके बाद एक्सरे किया, MRI किया। मेरे नी में जो पटेला था उसमें टैर थी और नी के नीचे के हिस्से में 5 हॉरिजेंटल क्रैक थी। लेकिन ऐसी हालत में मैंने पहले 2 दिन बाइक चलाई, जब मेरे से गियर नहीं उठ रहे थे तब मैं, जो हमारा बैकअप में एक ट्रक था उसके मैं बैठ गई थी। लेकिन ये हौसले और दृढ़ मनोबल की बात है। जब तुम कुछ चाहते हो तो तुम जरूर कर सकते हो। ऐसे ही 1997 में एक ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन हुआ था। हमारा ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन शुरू हुआ था। आपने मैप देखा है ना, सबने, बच्चों ने। मैप बनाना कितने लोगों का आता है? मैप बनाना आता है? नक्शा, भारत का नक्शा किसको आता है? सबको आता है? नहीं आता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो नीचे किसने बनाया? इतने सारे धान देके बनाया। आपने देखा है? नहीं देखा है तो नीचे जाके बहुत अच्छे से देखना, है ना। तो नक्शे के सामने ऐसे खड़े रहोगे तो उसका जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम का उस तरफ का हिस्सा, तो पूरा लेके मैप में आप देखोगे कि यहाँ से लेके पूरा ऐसे ऊपर जा रहा है ना। और पूरी हिमालयन रेंज है, जिसको हिमालयन रेंज 3 पार्ट में होती है, लोअर हिमालय, मिडल हिमालय और हायर हिमालयस। तो हमें 3 हिमालय क्रॉस करने थे। वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है समझने के लिए कि लोअर हिमालय किसको कहते हैं, मिडल किसको कहते हैं, हायर किसको कहते हैं। तो हमने जो ट्रांस हिमालय किया उसमें 4500 किलोमीटर हमने तय किया ऑन फुट, पैदल चले हम लोग 9 महीना। और तब मेरी बेटी 3.5 साल की थी, छोटी सी थी। मेरे हस्बैंड ने उनको संभाला, मेरे इन-लॉज ने भी, मतलब मेरे सास ससुर ने भी मुझे बहुत ही सपोर्ट किया कि तुम अच्छा काम करने जा रही हो तो तुम्हारी बेटी हम रखेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही रखूँगा। तो उन्होंने माउंट आबू में बेटी को 3 महीना संभाला और उसके बाद हमने 2 कंट्रियाँ क्रॉस करी ट्रांस हिमालय में, नेपाल और भूटान। उस दौरान हमको बहुत ही तकलीफ हुई है, ऐसा आसानी से नहीं हुआ है। हम यहाँ से पालनपुर चल के जाएंगे तभी क्या तकलीफ होती है, पैर भर जाता है, ब्लिस्टर हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है ना। तो ये तो 9 महीने का प्रोग्राम था और उसमें 9 महीने के प्रोग्राम में आप एक दिन में बैग नहीं भर सकते हो, नहीं कर सकते ना।
हम 4 दिन बाहर जाते हैं तो ये कपड़ा लेना है, वो लेना है, फलाना लेना है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो 9 महीने का जो हमारा प्रोग्राम था, हम उसको 20 साल से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे हम कुछ नया करें। लेकिन हम फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हमारे मैप कहाँ से लाएंगे, मतलब नक्शे सारे इंटीरियर चाहिए ना, वो सब कहाँ से लाएंगे, वो सोच रहे थे। और प्लान बनाते बनाते इतने साल निकल गए। मुझे लगता है शायद हमने 86 में डिसाइड किया था कि हम ट्रांस हिमालय एक्सपीडिशन करेंगे, क्योंकि हमें नया कुछ करना था। और 86 में ये सोचा, बाद में हमें पता चला कि भारत की आज़ादी को 50 साल पूरा हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट सहाय दे रही है। और गवर्नमेंट और टाटा स्टील, बचेंद्री पाल टाटा स्टील की हेड थी तब, तो टाटा स्टील और गवर्नमेंट के साथ मिलके टाटा स्टील ने स्पॉन्सर किया, गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंस दिया, टाटा स्टील ने भी फाइनेंस दिया, और उन्हीं के सपोर्ट से हम बहुत ही अलग अलग जगह का, मतलब भूटान और नेपाल का इंटीरियर मैप जुटा पाए हम लोग। और फिर हमने हमारी जर्नी शुरू की 1997 में। अरुणाचल प्रदेश से शुरू की थी हमने, फिर उसके बाद हम भूटान पहुँचे, पूरा भूटान क्रॉस किया, फिर भूटान से हम लोग नेपाल पहुँचे, नेपाल से वापस हम इंडिया में आया। इंडिया में आके हम लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख होते हुए हम सियाचिन ग्लेशियर पहुँचे, जब हम लोग 4500 किलोमीटर चल चुके थे। और हमारी एवरेज थी 65 किलोमीटर पर डे, इतना हम चलते थे। एवरेज बता रही हूँ, पहाड़ में तो मैं इतना नहीं चल सकते, क्योंकि पहाड़ में जब हम लोग जाते थे तो बहुत ही, हमने 2-2, 3-3 फुट बर्फ़ में भी रूट ओपन किया है, पहाड़ की टोच पर भी गए हुए हैं। वो बहुत लंबा टॉपिक है, और मैं कभी करती हूँ, उसका स्लाइड शो भी करती हूँ। तो मुझे अभी तो आप लोग देखोगे, जो आपने पूर्णा देखा, हम लोग जब गए थे हमारे पास में छोटे कैमरा था, लेकिन अभी जो कैमरा है और अभी जो प्रेजेंटेशन बनता है, उसकी इमेज बहुत सालों के पहले और अभी में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस जुटा है हमने, और हर दिन, हर एक सप्ताह में हमें प्लानिंग करना पड़ता था जाने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पर भी बहुत जिम्मेदारी थी। मैं डेप्यूटी लीडर थी, बचेंद्री पाल लीडर थी, और हर एक सप्ताह में हर रोज़ राशन कहाँ से खरीदना, पॉटर कहाँ से लाना। हमारे साथ में एक कुक और हेल्पर ज़रूर था। हम सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठ के खाना बनाते थे, और खाने में हमारा वो जो खाना बनता था वही ब्रेकफास्ट होता था और वही लंच होता था। फिर जब हम वहाँ से कैंप उठा के दूसरी जगह रात में कैंप डालेंगे, तो वहाँ पर शाम का डिनर हमारा बनता था। लेकिन उसमें भी हम लोग बहुत रास्ता भटक गए हैं। 1 महीना हमने सिर्फ राइस ही राइस खाया है। राइस की कितनी वैरायटीज़ बनती है, हाँ, बॉइल्ड राइस खाओगे, राइस छौंक के खाओगे, खिचड़ी बनाओगे, खिचड़ी कहाँ, दाल तो थी ही नहीं, खाली राइस था। और वैसे इंटीरियर में, रिमोट एरिया में हम लोग चले गए थे, जहाँ पर बहुत लंबे 6.5 फुट के लोग थे, और वो लोग जैसे बंकर टाइप के घर बना के रहते थे। तो बहुत ही, मतलब एक अलग अनुभूति थी ज़िंदगी में। आज भी वो अनुभूति को मैं भूल नहीं पाई हूँ, क्योंकि आज उसके बाद में मैंने कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं इतने रिमोट एरिया में जाने का मौका ही नहीं मिला है। वहाँ परमिशन के बगैर कोई जा ही नहीं सकता है। जो हमें डिफेंस ने परमिशन दी थी 99 में और 97 में, तो डिफेंस की परमिशन से हम लोग, आर्मी एरिया होता था, वहाँ रहते थे, हमें आर्मी का सपोर्ट भी मिलता था। और बाकी जब अंदर चले जाते थे, सब कुछ हमें करना पड़ता था। सियाचिन ग्लेशियर में भी गए, 5 दिन हम लोग फंस गए थे, और फिर हमारे पर एवलांच आया था। एवलांच पता है सबको? एवलांच किसको कहते, देखा? कल देखा, पूर्णा में था एवलांच के नहीं था? एवलांच का मतलब है हिमप्रपात। जो बर्फ, जैसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं, लैंडस्लाइड मालूम है? जमीन का धंस जाना, उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं, है ना? लेकिन जब बर्फ धंस के आता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एवलांच। वो माउंटेनियरिंग टर्म है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप उससे जुड़े नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं होगा। तो मेरा समय हो चुका है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पूर्ण करना चाहिए।
और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, इतने सारे लोग उपस्थित हैं और मैं सबको तहे दिल से वंदन करती हूँ। सबको दिल से प्रणाम, सलाम अलैकुम। और वडील गण है, उसको मेरा तहे दिल से नमन और प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद। કોઈને બેનને પ્રશ્નો કરવા હોય, કશુંક જાણવાની આપને ઉત્સુકતા હોય તો આપ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો બેનને. માઈક. હું ગુજરાતીમાં પણ જવાબ આપી શકું છું। हाँ, किसी वाली को भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों में से ही हूँ। मैं पहाड़ों में भी रही हूँ, गांव में भी रही हूँ। मैं गायों के बीच में भी सोई हूँ, गोबर में भी सोई हूँ। ठीक है, मुझे ज़मीन भी मिली है, मुझे 5 स्टार भी मिला है और मुझे मल्टी स्टार होटल भी मिली है। मल्टी स्टार होटल किसको कहते हैं पता है? बाहर खुले में सो जाओ आसमान के नीचे, है ना, मल्टी स्टार होटल है वो। ગુડ મોર્નિંગ મેડમજી, મારું નામ મારિયા છે, હું ધોરણ 10 એમાં અભ્યાસ કરું છું। गुड। તમે પર્વતારોહણ શા માટે કરવા માંગતા હતા અને એનાથી ફાયદો શું? फायदा फायदा बहुत है भाई। आप पढ़ते क्यों हो? पहले ये बताओ, पढ़ते क्यों है? आगे जाने के लिए। आगे जाने के लिए ना। और आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, पहले ये बताओ। हम सभी चीज में फायदा ढूंढते हैं। कभी अपने इनर ग्रोथ के बारे में सोचा है? आत्मदर्शन के बारे में कभी सोचा है? नहीं ना। तो हम लोग पहाड़ में, मैं पहाड़ में क्यों गई और कहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली, वो मैं कहना चाहूँगी। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मेरी सिस्टर का, बहुत ही तहे दिल से उसका भी धन्यवाद करती हूँ। मेरी बहन बड़ी थी, हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे, इतना पैसा नहीं था। पापा बहुत ही कंजर्वेटिव थे। हम जब हॉल में, मतलब लिविंग रूम में कोई भी गेस्ट आता था, उसमें कोई भी आदमी होगा ना, तो पापा खाली आंख से देखते थे, उठ के अंदर चले जाने का। तो हमारे घर में ऐसा रिस्ट्रिक्शन था। तो मेरी सिस्टर को बैंक में जॉब मिल गई। मेरी सिस्टर बैंक में जॉब करती थी तो उसको पैसा आता था, और उसने माउंटेनियरिंग में एक बार उसकी कॉलेज से चली गई होगी तो उसको लगा कि मेरी बहन मेरे से ज़्यादा फिट है, उसको भेजना चाहिए। तो उसने मुझे चुपके से पहले टिकट मेरी बुक करा देती थी। कोई भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने जानी होती थी तो रेलवे का बुकिंग करा देती थी। मेरे पापा को नहीं बताते थे। अब लोग 2 दिन के पहले, जब जाने के 2 दिन के पहले बताते थे। बहुत मार खाया है मारते थे। फिर जब जाने का टाइम होता था तो नालियाँ रात में देते थे, टिका करते थे, हलवा भी खिलाते थे, लेकिन जाने से पहले मार जरूर पड़ती थी। तो मैं चाहती हूँ कि वो उस जमाने की बात है कि जब ये लोग इतने फ्री नहीं थे। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरे माँ बाप ने क्या बोलते हैं, उन्होंने एक नात में शादी नहीं करी थी, उनकी अलग अलग जाति थी। मेरी माँ को कभी उनके पियर में बुलाया नहीं है, लेकिन मेरी माँ बहुत ही स्ट्रांग थी। वो भी स्कूल में थी, बच्चों, वो भी शिक्षक थी, बच्चों को पढ़ाती थी। वो हमेशा चाहती थी कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। मेरी माँ को पता रहता था, वो पीछे से हमारा हौसला बढ़ाती थी। और जो कुछ भी हूँ मैं आज, मेरी माँ और मेरी बहन की वजह से हूँ। और मैं पहाड़ में इसीलिए गई कि एक बार में जब मैं पहाड़ में गई, मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई, मुझे बहुत सुकून मिला, अंदर से मुझे शांति लगी। और इतना सुंदर नज़ारा मैंने कभी पहले नहीं देखा था। और जब मैं माउंट आबू गई तब कॉलेज में ही पढ़ती थी, लेकिन तब से मैंने ठान के रखा था कि मैं ज़रूर नौकरी करूँगी तो माउंट आबू में ही करूँगी। और वो कॉलेज में जब थी, स्कूल में से ही तब गई थी, कॉलेज में नहीं। तब मैं माउंटेनियरिंग में गई थी एक कोर्स करने। मेरी कॉलेज ख़त्म हो गई, फिर मैं सेल्स गर्ल में भी मैंने काम किए, छोटे मोटे बहुत काम किए, बैंक में भी 3-3 महीने टेम्परेरी काम किया है।
और उसके बाद मुझे जॉब मिली है। इतनी आसानी से नहीं मिली है, लेकिन मैं सुबह शाम मुझे माउंट आबू में जॉब करनी है, मुझे माउंट आबू में जॉब करनी है, और आखिर में मुझे माउंट आबू में जॉब मिल गई। और किसी का क्वेश्चन है? कोई पेरेंट्स को कुछ पूछना है? आज तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि जैसा मेरे फादर करते थे ऐसे आप लोग करते होंगे, है ना। वो ज़माना बदल गया है, लेकिन उसके बाद मेरे फादर ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है और बहुत प्राउड महसूस करते थे। उसके बाद तो हमेशा जाने देते थे। शुरू में जब ट्रेनिंग पीरियड था तब मुझे बहुत ही परेशान हम लोग हो गए थे, बाद में सब कुछ ठीक हो गया और बहुत एक सुकून के साथ में जब गए तो बहुत अच्छे से विदा हुए वो। ओके, थैंक यू सो मच। નમસ્કાર મેડમજી. તો તમારી વાણી સાંભળીને મને પણ પ્રશ્ન પૂછવાનું મન થયું કે તમે પર્વતારોહણ કર્યું તો તમારા પરિવારનો કેવો સહારો હતો? मैं ये तो कीधु बेटा, मेरा परिवार का बिल्कुल पहले सपोर्ट नहीं था, मेरी माँ के और बहन के अलावा। मेरे पापा बहुत मुश्किल से भेजते थे पैसा, मेरी बहन निकालती थी क्योंकि वो बैंक में जॉब करती थी। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी बहन हमेशा पैसा निकालती है। वो घर का काम भी करती थी, मैं भी करती थी, लेकिन फाइनेंस की बात आती थी तो मेरी बहन सपोर्ट करती थी, क्योंकि पापा से पैसे मांग नहीं सकते थे हम, तो बहन ही पैसा देती थी। तो वो जो सपोर्ट है मेरी माँ और मेरी बहन से सपोर्ट मिला। उसके बाद में कुछ साल के बाद में फादर का भी सपोर्ट मिला, लेकिन मेरे घर में सपोर्ट मिलने के बाद और आफ्टर मैरिज मेरी नौकरी ऐसी थी कि पहाड़ में मैं सुबह घर से 5 बजे निकल जाती थी। मेरे 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां छोटी थी, दोनों बेटियां को कौन पालेगा। मेरे घर में एक बहन रहती थी, सुबह शाम रात में ही वहीं रहती थी, वो बच्चों को संभालती थी, खाना बनाती थी, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की परवरिश मेरे हस्बैंड ने ही की है। मैं सच बोलूँगी, आज मुझे गौरव भी है उस बात का कि मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है। और मेरे सास ससुर बहुत ही, भले ही वो गांधी परिवार से थे, गांधी विचार वाले थे, लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जहाँ भी जाती थी हमेशा मुझे मेरा हौसला बढ़ाते थे और मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए बहुत ही आग्रह करते थे, लेकिन मैं भी कमाती थी तो नहीं लिया है, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट आपको मिलता है शाब्दिक रूप से, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर मेरा जवाब अधूरा लगा है तो कुछ और भी पूछ सकती हो। મેમ આપનું લાઈફ લેસન શું છે? બેસ્ટ લાઈફ લેસન અમારી માટે? लाइफ लेसन में आपका विद्या संकुल जो है नवदीप विद्या, आप यहाँ के स्टूडेंट है? बाली है ना? स्टूडेंट है। हाँ, पहले अपने नैतिक मूल्यों को संयोज के रखिए, मुझे लगता है, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मानव मूल्यों के लिए बताया है ना, परोपकारिता चाहिए, सहायता चाहिए। अभी एक देखना आप लोग, कभी एक्सीडेंट होता है और लोही लुहान हो जाता है कोई, तो हम साइड से निकल जाते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ की प्रणाली ऐसी है कि हमें कोई पुलिस थाने में बंद कर देगा, हमें बहुत क्वेश्चन आंसर करेगा, हमें बुलाएगा, इसकी वजह से हम लोग मदद नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ में अच्छा ही होता है, तो डर दिल से निकाल देना चाहिए और हमेशा हौसला बना के रखिए, आगे का सोचते रहिए, बहुत बड़ी बड़ी होप रखो और सक्सेस ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके लिए संकल्प होना बहुत ही ज़रूरी है और संकल्प के साथ में मेहनत भी इतनी ज़रूरी है। ठीक, थैंक यू। ખૂબ ખૂબ આભાર બેનશ્રી. આપે આપના વક્તવ્યમાં પરિવારનું મહત્ત્વ અને માનવ મૂલ્યોનો ખૂબ જ સહજ સ્વીકાર થાય એ રીતે સંવાદ કર્યો. બેનશ્રીએ ગણતંત્ર અને સ્વતંત્ર ભારત શું છે, સ્વતંત્ર ભારતને ઓળખવાનો આપણો
નવો એક દ્રષ્ટિકોણ આપ્યો છે. બેનશ્રીના વક્તવ્યથી સમજાયું કે ગંગા, યમુના અને ગોદાવરીનો સંગમ એટલે જ ભારત નહીં, પરંતુ સત્ય, પ્રેમ અને કરુણાનો અખંડ ધોધમાર નદીનો વહેતી એટલે આપણું ભારત. હજારો વર્ષો જૂના આયુર્વેદની ભેટ આપનાર જ ભારત નહીં, પરંતુ પ્રકૃતિને સાચવીને, સંયમને તંદુરસ્ત રાખીને, સદાબહાર તરકીબ જાણતા આવા વિદ્વાનો એટલે આપણું ભારત. બોર્ડરની બેને વાત કરી, એમાં ભારત એટલે પાકિસ્તાન કે ચીન જેવા બોર્ડરે આવેલા દેશ જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વને, જગતભરને સાચું જીવન જીવવાની બોર્ડર બતાવતો દેશ એટલે આપણું ભારત. ખૂબ ખૂબ આભાર બેનશ્રી. આપે અમારો ભારતને ઓળખવાનો એક નવો દ્રષ્ટિકોણ પૂરો પાડ્યો છે. હવે આપણે આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું આપણા વિદ્યાર્થીઓ માટે કાનજીભાઈ ચૌધરીના ધર્મપત્ની ઈજુબાના સ્મરણાર્થે આપણા બાળકો માટે ધોરણ કેજીથી લઈને 10મા ધોરણ સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે પેન્સિલ, ચોપડા, નોટબુક અને બોલપેનનું ઇનામ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો હું કાનજીભાઈ ચૌધરીને વિનંતી કરીશ કે તેઓના વરદ હસ્તે. ધન્યવાદ. તો હવે આપણે આપણા જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ છે એની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે ધોરણ બાલવાટિકા અને ધોરણ 1 અને 2ના બાળકોનો સુંદર મજાનો એક ડાન્સ અહીંયા પ્રસ્તુત થશે. તો આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે વધાવી લઈએ બાળવાટિકા ધોરણ 1 અને 2ના વિદ્યાર્થીઓ, જેઓ આપણને ફિર ભી દિલ હૈ હિન્દુસ્તાની આપણને જે ઇનામ પ્રાપ્ત થયું છે એ આપણે સોમવારે આવતીકાલે પ્રાર્થના સભામાં આપીશું. कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है. ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है. जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना. साथ हम इश्क बात दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छुएते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले.
कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जब ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान निसार कर डाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोले दिल के ताले। जा देते उसको जहाँ देते, अपना ईमान देते, जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना। एक बार होता है प्यार, ये लाख बार कहला ले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। નાના નાના ભૂલકાઓનો આ પ્રસ્તુતિ જોઈને આખો હોલ આમ ઉત્સાહિત થઈ ગયો। ખૂબ જ સુંદર। मैं अभी आगे का वक्तव्य थोड़ा हिंदी में रखना चाहूंगी। योग से शरीर पुष्ट होता है और मन को शांति मिलती है। हर साल 21 जून को भारत और विश्व में योग दिन उत्साह से मनाया जाता है। हमारे भारत में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के 8 अंग की व्याख्या की है, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। वैसे तो योग तक पहुंचने से पहले यम और नियम का पालन करना अति आवश्यक हो गया है, तभी योगासन चरितार्थ होता है। और इसीलिए उससे पहले अगर हम योगासन करें तो उसका मर्यादित शारीरिक फायदा होता है, जबकि योग उससे कई बड़ी चीज है। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री ए नागराज जी ने भी योगाभ्यास के पर कहा है कि योगाभ्यास पूर्णतया सामाजिक एवं व्यावहारिक है। अव्यावहारिकता एवं असामाजिकता पूर्वक योगाभ्यास होना संभव नहीं है, अर्थात मानवीयता में ही योगाभ्यास चरितार्थ होता है, ऐसा पूज्य ए नागराज जी ने कहा है। तो ऐसा ही एक योगा डांस लेके आ रही है कक्षा 6 और 8 की बालाएं। तो सभी बालाओं को मैं अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आए और अपनी प्रस्तुति दें। दूर उस आकाश की
एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। इस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी, बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, सांस शाश्वत आदि योगी, प्राण धारा छलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। ધન્યવાદ. આ યોગા ડાન્સમાં આપણી જ શાળાની ચૌધરી તન્વીબેન ધોરણ 6માં અભ્યાસ કરે છે, જેઓ તાલુકા કક્ષાની યોગ સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે, તો શાળા પરિવાર એમના પ્રત્યે ખૂબ જ હર્ષની લાગણી અનુભવે છે. शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग. ખૂબ સરસ પ્રસ્તુતિ બાદ હવે મુગલોની બર્બરતા કે અંગ્રેજોના અમાનુષ્ય અત્યાચાર કે વિદેશીઓના ભયંકર આક્રમણો એટલે ભારત? ના. સદીઓથી આવા તો કઈ કેટલાય પિશાચો અને શૈતાનોના મૌન સહ્યા બાદ બદલાની ભાવના વગર ફરી ટટ્ટાર ઊભું થતું, એ ખમીર બનતું એટલે આપણું આ ભારત. તો આવી
ખમીરવંતા ભારતની વાત લઈને આવી રહી છે બેન શ્રી ગાયત્રી, જેઓ ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરે છે. તો હું બેન ગાયત્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મંચ પર આવે અને પોતાની વાત રજૂ કરે. નમસ્કાર. અત્રે ઉપસ્થિત આજના મહેમાનગણ, આજના મુખ્ય અતિથિ શ્રીમતી ચૌલાબેન જાગીરદાર, શાળાના નિર્ણાયક શ્રી, આચાર્યશ્રી, શિક્ષકો અને મારા વહાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, હું પ્રજાસત્તાક દિન વિશે 2 શબ્દો કહેવા માંગુ છું, તો તમને શાંતિથી સાંભળવા નમ્ર વિનંતી. सपनों में बसी है तिरंगे की शान, सपनों में बसी है तिरंगे की शान, जान से भी बढ़कर है भारत का सम्मान. આપના સ્વતંત્રતા સંગ્રામના ઇતિહાસમાં 26મી જાન્યુઆરીનું પોતાનું જ એક વિશેષ મહત્વ છે. 1930માં રાવી નદીના કિનારે કોંગ્રેસના લાહોર અધિવેશનમાં પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા આ દિવસે પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી હતી કે જ્યાં સુધી ભારતના લોકોને આઝાદી નહીં મળે ત્યાં સુધી સ્વતંત્રતા ચળવળ ચાલુ રહેશે. આ બધા સંઘર્ષો સાથે અનેક મહાનુભાવોએ પોતાનું બલિદાન આપવું પડ્યું હતું. તેમના બલિદાનને આજે પણ ભારતના નાગરિકો ભૂલી શક્યા નથી. ભારતનું સંવિધાન 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે અમલ કરવામાં આવ્યું હતું. આપણા દેશનું સંવિધાન બનવામાં 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. ભારતીય સંવિધાન એ ભારતનું સૌથી મોટું લેખિત સંવિધાન છે. દર વર્ષે 26મી જાન્યુઆરીની ઉજવણી ઉત્સાહભેર કરવામાં આવે છે. ઠેર ઠેર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રાખવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રધ્વજ દર વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા દિલ્હીના રાજપથ ખાતે લહેરાવવામાં આવે છે અને પછી રાષ્ટ્રગાનની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. આ પ્રસંગ ભવ્ય હોય છે. 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ આપણો દેશ પ્રજાસત્તાક બન્યો હતો. આપણો ભારત દેશ સ્વતંત્ર થયો, પણ શું સાચા અર્થમાં સમાજમાં અભય અને પ્રકૃતિ સંતુલિત બને એ થઈ શક્યું છે? આપણો ભારત દેશ એ દેશ છે જેને વસુદેવ કુટુંબકમ એટલે કે વિશ્વ એક પરિવાર બને એ વિચારધારા વિશ્વને આપી છે. સાચા અર્થમાં આપણી સ્વતંત્રતા ત્યારે સાકાર થશે જ્યારે માનવ સ્વયંમાં વિશ્વાસથી ભરેલો હશે, પરિવારમાં સમૃદ્ધિ હશે, સમાજમાં અભય સ્થાપિત થશે અને પ્રકૃતિ સંતુલિત થશે. એ જ સાચા અર્થમાં સ્વતંત્રતા છે. छोटे छोटे दियों से रोशनी जलाने हम चले, स्वतंत्रता को साकार करने कदम बढ़ाए हम चले. जब विश्व एक परिवार बने तभी स्वतंत्रता साकार है, जब विश्व एक परिवार बने तभी स्वतंत्रता साकार है. आओ हम सब कदम मिलाए, साथ साथ मिलके हम चले. એકમેકનો બની આધાર સૌનો વિકાસ કરીએ, વસુદેવ કુટુંબકમના સ્વપ્નને સાકાર કરીએ. ભારતના બહુમૂલ્યો આ વિચારને પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણે વાવીએ, સકળ આ વિશ્વને શાંતિની દોરે મજબૂત બાંધીએ. પાંખો બની પૃથ્વીની સૌ સાથે ઊંચી ઉડાન ભરીએ, સુમેળ ભર્યું આખું આ આકાશ મુઠ્ઠીમાં કરી લઈએ. શક્તિ, શાંતિ, સાક્ષરતા, શ્રદ્ધા અને સ્થિરતા ગીત ગાઈએ, સ્વસ્થ સમૃદ્ધ સ્વર્ગથી પણ સુંદર પૃથ્વીનું નિર્માણ કરીએ. રાગ, દેશ, મોહ, સ્વાર્થ, ભેદભાવ, ભ્રષ્ટાચાર
વિચાર બોલાવીએ વિશ્વના બંધુ, એક બની માનવતાની અખંડ જ્યોત જગાવીએ. હવા, પાણી, પ્રકાશ, આકાશ અને દરા, ન કરે ક્યારે કોઈ ભેદ જરા. શીખો સૃષ્ટિ પાસે આ સમાનતાની અમૃત ધારા. પ્રાણી, પક્ષી, જીવજંતુ, હરિયાળા વૃક્ષો અને સૃષ્ટિના કણ કહી દઈએ, એકમેક વિના નહીં ઉદ્ધાર, સહ અસ્તિત્વ નવી દિશા કાયમ કરી લઈએ. સૌને પોતાના ગણી પ્રેમથી આવકારીએ, અપનાવીએ. સૌ એક બની વિશ્વ કલ્યાણકારી વસુદેવ કુટુંબકમના સાર્થક કરીએ. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ જ સુંદર. હવે આપણે આઝાદ ભારતમાં જન્મ્યા હોવા છતાં, ભણેલા હોવા છતાં આપણે ભ્રમવશ બીજાઓની વાતમાં આવી જઈને આંધળું અનુકરણ કરીએ છીએ. માનવતાના અર્થમાં નિર્ણયો લેતા નથી, માનવ લક્ષ્યના અર્થમાં નિર્ણયો લેતા નથી, અને પરિણામે દેશ અને દુનિયાને નુકસાન થાય એવા કાર્ય વ્યવહાર કરીએ છીએ. તો આવી જ એક થીમ પર નાટક લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 4 અને 7ના વિદ્યાર્થીઓ. તો આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે એમને વધાવી લઈએ અને તમામ વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કે તેઓ મંચ પર પોતાનું સ્થાન લે. તો આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ વચ્ચે નિહાળીએ ધોરણ 4 અને 7ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અભિનીત નાટક. मैं हूँ मास्टर ऑफ साइंस. मैं हूँ मास्टर ऑफ कॉमर्स. मैं हूँ मास्टर ऑफ आर्ट. मैं हूँ मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग. मैं हूँ मास्टर ऑफ फाइनेंस. मैं हूँ मास्टर ऑफ इंजीनियर. मैं हूँ मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर. मैं हूँ मास्टर ऑफ होम साइंस. मैं हूँ मास्टर ऑफ फूड साइंस. मैं हूँ मास्टर ऑफ लिंग्विस्टिक्स. मैं हूँ मास्टर ऑफ एसेंस. मैं हूँ मास्टर ऑफ योगा. मैं हूँ मास्टर ऑफ पैथोलॉजी. और हम हैं यूथ वन हंटर. और ई सबे हमार जबूरे. क्या कहते? हाँ, देश के युवा. पर ई तो गलतफहमी है, गलतफहमी. क्योंकि ये तो हमार सीधे साधे जबूरे हैं, जबूरे. जैसन जैसन हम बोलते वैसन वैसन ये लोग करते. और ई है इनका रिमोट वार. चलो 2-4 टेस्टिंग हो जाए. हैप्पी मोर. बाबा बोले मस्ती में डोले. बाबा बोले मस्ती में डोले. बाबा बोले मस्ती में तू डोले. स्टॉप. केम्बो खुश हुआ. चलो एक और टेस्टिंग हो जाए.
गाड़ी चलती रहती है। जबरो फॉलोइंग मोड। बस करो, बहुत हुआ ये सब। कभी जातिवाद के नाम पर, तो कभी कौमवाद के नाम पर, तो कभी आरक्षण के नाम पर हम किसी के पहनाए हुए चश्मे को पहनकर कभी बसें चलाते हैं, तो कभी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम खुद से ना ही कुछ सोचते हैं और ना ही कुछ समझते हैं, बस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो हमें हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना है या फिर हमें हमारा निर्णय सोच समझ कर लेना है? हमें हमारा निर्णय राष्ट्र के हित में लेना है, नहीं समग्र भारत के हित में लेना चाहिए। तभी हम सही मायने में प्रजासत्ताक कहलाएंगे। नियम का विरोधी रूप है। हम सभी मानवीय नियमों का पालन करना चाहिए। हमें हमारे संविधान के कर्तव्य और दायित्व दोनों के प्रति वफादार रहेंगे। तो हमें अनुकरण की मोटर चलानी है या मानवीयता की? तो बोलो मेरे साथ, मानवीयता की मोटर चली पम पम पम, चली पम पम पम। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. વિદ્યાર્થીઓ માટે એક બાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. બહુ જ સુંદર પ્રસ્તુતિ આપી. તમામ વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કે તેઓ પોતાનું સ્થાન લે. આજે આપણે અને ધોરણ કેજીથી લઈને ધોરણ 2ના વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કરીએ કે તેઓ નીચે ક્લાસરૂમમાં જાય. બેન્ચશ્રીઓ ધોરણ કેજીથી લઈને 2ના વિદ્યાર્થીઓને નીચે ક્લાસરૂમમાં લઈ જશે. આજે જે પણ વિદ્યાર્થીઓએ હેલો હેલો અલગ અલગ હેલો હજી એક પાત્રી અભિનય બાકી છે, પણ નાના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ એક પાત્રી અભિનયને જોઈ શકે નહીં. એના કારણે થોડા ડરે, બાળકો નાના છે એટલે એવા બાળકોને આપણે નીચે મોકલીએ છીએ. વાલીઓ બધા બેસજો. આપણે બિલકુલ શાંતિથી પોતાનું સ્થાન લઈશું. આપણે શાંતિથી પોતાનું સ્થાન લઈશું. હજુ આપણી કૃતિ નિહાળવાની બાકી છે. આપણા સંસ્કાર હોલમાં આપણે શાંતિ જાળવીશું. તમામ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ શાંતિ જાળવે. આજે જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓએ અલગ અલગ કૃતિઓમાં ભાગ લીધો છે, એમને આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં જે વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો છે એવા તમામ વિદ્યાર્થીઓને આપણા ડૉક્ટર મુકેશ યોગીજી તરફથી 50 રૂપિયા દરેક વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ પેટે પ્રાપ્ત થાય છે. ડૉક્ટર મુકેશ યોગીજી ગુંજા હાલ વસઈમાં છે, જેમની સિદ્ધેશ્વરી મલ્ટી ક્લિનિક હોસ્પિટલ છે. તો
અમે શાળા પરિવાર વતી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ કે જેઓએ અમારા આ ભૂલકાઓનો ઉત્સાહવર્ધન કર્યો છે. તો હવે આજે આપણે વિકાસના નામે ઘણા આગળ પડતા છીએ. આપણો દેશ સતત પ્રગતિના પંથે આગળ વધી રહ્યો છે, પણ સાથે સાથે એક દીકરા દીકરીના ભેદભાવ પણ આપણે જોયો છે. તો આવા જ વિષય પર એક પાત્રીય અભિનય લઈને આવી રહ્યા છે બેન જાગૃતિબેન. ગુજરાત રાજ્યના યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા દર વર્ષે ઉજવવામાં આવતો કલા મહાકુંભ, જેમાં બેનશ્રીએ કૃતિ રજૂ કરી હતી અને પ્રદેશ કક્ષાએ દ્વિતીય નંબર પ્રાપ્ત કર્યો છે. તો આપણે સૌ સાથે મળીને એ કૃતિને નિહાળીએ. બેન શ્રી જાગૃતિબેન. મમ્મી, એ મમ્મી, મમ્મી, આપણે ક્યાં આવ્યા છીએ મમ્મી? મમ્મી, આ તો હોસ્પિટલ છે મમ્મી. મમ્મી, મમ્મી, તું મને મારવા માંગે છે? મમ્મી, મમ્મી, આ ડોક્ટર. મમ્મી, મમ્મી, સાચું બોલ, તને કોણે ભડકાવી છે મમ્મી? મમ્મી, મમ્મી, તને દાદાએ ભડકાવી છે? તને દાદીએ? નહીં, નહીં, એ તો આવું ના કરી શકે. તને કાકાએ ભડકાવી છે, તને કાકીએ ભડકાવી છે. અને તું કહે છે ને મારો આ એજ્યુકેશનનો જમાનો, તો તને શું તારો એજ્યુકેશનનો જમાનો તને આ શીખવાડે છે કે એક દીકરા દીકરી વચ્ચેનો ભેદભાવ? મને તું શું કામ આ દુનિયામાં લાવવા નથી માંગતી? હું પણ આ દુનિયા જોવા માંગુ છું તારી જેમ. હું પણ બહાર આવીને કઈ ને કઈ નવું કરવા માંગુ છું, પણ નહીં. તારી માએ જ ભૂલ કરી કે તને જન્મ આપ્યો આ દુનિયામાં. જો તારી માં તને આ દુનિયામાં ના લાવી હોત તો તું મારી જોડે આ કૃત્ય કરત, પણ નહીં. તું તો ક્યાં સમજે છે મારી વાતને? બોલા મારા પપ્પાને. ક્યાં છે મારા પપ્પા? પપ્પા, પપ્પા, પપ્પા. નહીં, નહીં, ડોક્ટર, પ્લીઝ, પ્લીઝ, મારે જીવવું છે. આ ડોક્ટરનો ઓજારો મારા શરીરને સ્પર્શ કરી રહ્યા છે. નહીં, નહીં, મમ્મી, મમ્મી, મને બચાવ. મમ્મી, મારે જીવવું છે. જો મારા બાપનું લોહી હોશ ને તો એનું દિલ ક્યારેય નહીં કહે કે મારી દીકરીને તું માર. પરંતુ એવું તો છે નહીં. ખબર નહીં તને શું થયું છે. અને કહેવાય છે ને દીકરી તે ગાય દોરે ત્યાં જાય. મેં તારું શું બગાડ્યું છે? મેં કંઈ નથી બગાડ્યું. અને તારો આ એજ્યુકેશનનો જમાનો છે તને શીખવે છે ને કે દીકરી નામે એક કલંક છે. જો દીકરી પેદા કરીશ તો તારું મોં કાળું કરશે. પરંતુ મમ્મી, તું મારા પર વિશ્વાસ કર, હું એવું નહીં કરું. જેમ આ દુનિયાના લોકોને એક બાપના નામથી દીકરીને ઓળખે છે એવું નહીં થવા દઉં. એક દીકરીના નામથી આ દુનિયા આખા મારા બાપને ઓળખશે એવું કરીશ. એટલી તાકાત છે મારા અંદર. પણ તું મારી સાથે શું કામ આવું કરી રહી છે? મને એ સમજણ નથી પડતી. મારે આ દુનિયા જોઈ છે, આ ખુલ્લા આકાશમાં ઉડવું છે. અને તું જ કહેતી હતી ને કે મારા ઘરમાં પણ દીકરાની વહુ આવશે. હું પણ જતી રહીશ. હું પણ જ્યારે મોટી થઈશ ત્યારે હું પણ જતી રહીશ. તારું કંઈ નહીં બગાડું, પણ મને જીવવા દે. મમ્મી, મમ્મી, આ ડોક્ટરને નાખી દે. મને અસહ્ય વેદનાઓ થઈ રહી છે. મારા શરીરમાંથી રુધિર વહી રહ્યું છે. મમ્મી, 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 મારા શરીરના એક એક ટુકડા થઈ રહ્યા છે. મમ્મી, મને બચાવો. મમ્મી, મારે જીવવું છે. મમ્મી, મમ્મી, મારે જીવવું છે. મમ્મી, મારે જીવવું છે. થેન્ક યુ.
આવા પરફોર્મન્સ અને લોક જાગૃતિના કારણે આ ભ્રૂણ હત્યા જેવા સામાજિક દૂષણને ઘટાડવામાં મોટી સફળતા આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. હાલ આપણા દેશમાં ભ્રૂણ હત્યાનું પ્રમાણ નહિવત જેવું કહી શકાય. પણ બેનશ્રીનો ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી અભિનય રહ્યો. ખૂબ સરસ બેન શ્રી જાગૃતિબેન. હવે આપણા મુખ્ય મહેમાન શ્રીમતી ચૌલાબેન જાગીરદાર, સંચાલક મંડળના સદસ્યશ્રીઓ, સમર્થ પરિવારથી પધારેલા વાલીશ્રીઓ, સર્વે આપ અહીં પધાર્યા એ બદલ નવદીપ શાળા પરિવાર વતી અમે આપ સર્વેનું હાર્દિક અભિવાદન કરીએ છીએ. આપ સર્વેનો આભાર માનીએ છીએ. થેન્ક યુ. અહીંયા આપણે આપણો આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. આપ સર્વે અહીંયા પધાર્યા એ બદલ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અહીંયા આપણે